वेलकम बैक फ्रेंड्स। Q&A का ये 8वां या 9वां सेशन है। आई डोंट नो, ये टाइटल पे लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा। आई एम सॉरी, एज आई सेड बिफोर एज वेल कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज मच एज पॉसिबल जल्द से जल्द ये सेशंस ला सकूँ। बहुत सारी ईमेल्स आपकी बैकलॉग में चली गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भी वेट कर रहे होते होंगे रिप्लाइज का। मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम था। डे जॉब भी है, जॉब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, और वीडियोज़ तो आपको पता ही है चली रही हैं यूट्यूब की। तो इन चीज़ों में थोड़ा-सा उसको, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम है, उसको थोड़ा-सा अरेंज करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा होता है। लेकिन आई होप कि आप लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं, आप लोगों को सैटिस्फैक्शन हो रही है जो मैं जवाब दे रहा हूँ। बाय द वे, ये जो जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, और इनको आप फाइनेंशियल एडवाइस ना लें। ये सिर्फ़ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, आपके सर्कमस्टेंसेस का नहीं पता होता। ये ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस ईमेल के ऊपर मुझे अपनी जो भी क्वेरीज़ होती हैं वो सेंड करें। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे आपके सर्कमस्टेंसेस समझ में आते हैं, उसके ऊपर मैं उस पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपको फ़ौरन शायद वीडियो ना मिले, कुछ 1 महीने बाद, डेढ़ महीने बाद डेफ़िनिटली आपको अपना क्वेश्चन मिलेगा इन वीडियोज़ के अंदर। तो अपना ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन बगैर किसी ब्रेक के स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को, और न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर मिस्टर वली, अस्सलाम वालेकुम। हाउ होप you are doing well, and I must acknowledge that you are really doing a noble cause by guiding about financial literacy. Okay, I'm not gonna name the person. For a couple of months, I have subscribed to your YouTube channel and watched all of the videos till then, especially Q&A. I'm really thankful to God for for so much blessing that He gave me, but I have some fears as well. My particular are as under: residing in Karachi, having two kids. Daughter is 9 years old. Son is only 1.5 years old. Working in, I won't take the name. Living with my mom in her home. She is not dependent on me. She is getting late father's pension and rent of property. My income is approximately 8,000 per month and getting approximately 4 bonuses from the company. Unfortunately, not saving a penny. Unfortunately, this shouldn't be the case. I am 41 years old. I have done my master's in finance. My wife is also educated. I won't take the degree's name, otherwise maybe people, but she's having good English skills. I always push my wife to start freelancing for content writing, but she always finds some excuses. I have no emergency fund. My company gave me complete health coverage of my family. I have started to bid on Upwork for freelancing, but unfortunately have not received any order. I have also started freelancing on digital marketing. Unfortunately, not yet received any orders yet as well. I have also worked with my friend's startup at my office as a marketing executive, but could not continue because my father passed away and my brother doesn't look after home stuff, so I have to look after it as well. My office resides 60 kilometers away from home, and my office timings are 8 to 4. I daily get up around 5:30. My company gave me Saturday Sunday holiday, but just to meet my expenses, I regularly visit office on Saturdays as well, just to get some financial benefits. Probably उनका कोई ओवर टाइम मिलता होगा. आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट अ जॉब इन द सिटी जस्ट टू स्टार्ट. अच्छा, ये काफ़ी दूर रहते हैं. आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट अ जॉब इन द सिटी just to start looking at other opportunities, but so far no luck. Liabilities, now he's telling his liabilities. Alphala credit card, which is around 40,000, but I'm paying at 3,000 rupees per month, which is really denting me. Of course. Okay, I have bought a state life policy for my kids for rupees 3,000 yearly premium, but have not been able to pay it back for 5 years. Okay, fears. He has some fears जो उन्होंने जिक्र किया. I have not saved a penny for my kids until now. I have 15 years available with me before I retire. I have spent 20,000 in UBL mutual fund 5 years back, end up withdrawing in a loss. I have lost approximately 400,000 in two Ponzi schemes. One B4U Global, and second, I'm taking the name because ये नाम मुझे पहले भी सुन चुका हूँ मैं, तो अच्छा है लोगों को पता चल जाए. Two Ponzi schemes, one B4U Global and second with a stockbroker. Actually, I'm not registered in stock, just giving him cash and he defaults now. He's defaulted and now in jail. So what he requires as suggestions. Suggestions are required. I'm getting regular bonus from my company which I want to use for investment. Please advise me about mutual fund investment for pension and for my kids' education. Should I invest in bitcoins and Octa FX
हुबाई और मुझे तो ये जो कॉइन्स है ना, इनके नाम मुझे नहीं पता होते, तो इसलिए आई डोंट नो। शुड आई इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड? मीज़ान, शुड आई इन्वेस्ट इन सर्वा? अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज इन दुबई, कैन हेल्प मी गेटिंग अ सर्वा अकाउंट, काइंडली सजेस्ट मी अ मंथली इनकम प्लान फॉर म्यूचुअल फंड। Brother, I'm really worried about my kids' future and about my post-retirement. I really help people in a lot in my capacity. I would appreciate if you could give your advice. सबसे पहले तो सबसे आखिरी वाली लाइन को पढ़ लेते हैं। I really help people a lot in my capacity. तो ये आपको जहाज़ में अगर बैठे हो ना कभी आप, तो आपको हमेशा जो अनाउंसमेंट होती है वो ये होती है कि सबसे पहले अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क गिरे तो सबसे पहले अपना लगाएं, अपने बच्चों का भी नहीं लगाएं, सबसे पहले अपना लगाएं और उसके बाद किसी और की हेल्प करें। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको अपनी हेल्प करनी है, आपकी अपनी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई अपना क्रेडिट कार्ड का जो जो अमाउंट है ना, पहले बोनस के ऊपर, अगर आपको पता है बोनस से इन्वेस्ट करना है आपको, तो पहले बोनस से आप ये अपना कैंसर ख़त्म कर दें। ये क्रेडिट कार्ड का जो डेट है ना, ये जो मंथली में आप पे कर रहे हैं, सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग वगैरह छोड़ दें। सबसे पहले आपको ये अपना पे ऑफ करना है। ये पे ऑफ करेंगे उसके बाद आप कुछ सोचेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आपको ये करना है। स्टेट लाइफ पॉलिसी का अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, आपने उसको पे ऑफ नहीं किया, अब आप उनसे बात करें कि अगर कोई पैसे वापस मिल सकते हैं आपको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से उस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पॉलिसी दोबारा स्टार्ट करनी है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अभी मेरे ख़्याल से इस पॉलिसी को पहले इसमें जो पैसे आपके चले गए हैं, अगर वो हो सके तो वापस निकलवाने की कोशिश करें सबसे पहले। अच्छा, इसके अलावा सर्वा की बात की आपने, तो सर्वा के अंदर तो ये है कि मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपके फॉर 2 रीज़न्स। सर्वा के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन सर्वा में मेरी उनसे खुद बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी फ़िलहाल वो पाकिस्तान या इवन इंडिया या कहीं बाहर से अपार्ट फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज़ वो इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रांसफ़र के जो मसले होते हैं वो उसको ओन नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए सर्वा के बारे में आप, एक वजह ये भी है कि आप छोड़ दें उसको, दूसरी वजह ये है कि आपकी जो इनकम लेवल है उसमें सर्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होगी, आपके किसी दोस्त के थ्रू करेंगे, अगेन इट्स नॉट गुड। अगर इन चीज़ों में किसी और के ऊपर चाहे लेने हो चाहे देना हो, मैं इन चीज़ों में कोशिश करता हूँ कि दूर ही रहूँ, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कि इर्रेलेवेंट अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट हो, जो कि जिसका सर पैर नहीं बन रहा है इस वक्त, तो उसमें आप किसी दोस्त के थ्रू जाएंगे वो तो बिल्कुल ही छोड़ दें आप। अच्छा, इसके बाद गोल्ड फंड। अच्छा, गोल्ड फंड और इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इन इन दो चीज़ों को आपको, और पेंशन फंड, अगर आप किसी तरह से अपनी पेंशन, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक लगा देता हूँ, हो सकता है आपने देखी हो। उसके अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि किस तरह से मैं अपने काफ़ी पैसे मैंने लूज़ किए व्हाइल नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड एट द सेम टाइम। और टैक्स भी बचता है आपका, और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और हार्ड मतलब इन्वेस्टमेंट होती है वो। फिर ये नहीं होता कि आप उसमें ब्रेक कर सकें, तो आपका एक तरह से वो पैसे लगे रहेंगे, और पैसे लगे रहने चाहिए। आपका टैक्स बचेगा उसके अंदर, टैक्स अब ज़्यादा पैसे तो नहीं बचेंगे क्योंकि आपकी सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसे बचेंगे और वो सेव होंगे, एक जगह पर चले जाएँगे। आपको स्टॉक मार्केट में सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको स्टॉक मार्केट में जाना है। आप उसमें गोल्ड फंड में भी जा सकते हैं, आप उसमें म्यूचुअल फंड्स में, जो स्टॉक मार्केट की म्यूचुअल फंड है उसमें भी जा सकते हैं, आप उसके अंदर पेंशन स्कीम में भी जा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर आप जा सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप अपना टैक्स का तकरीबन कोई 40% सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैंने उस वीडियो में ज़िक्र किया था, उस वीडियो को जाके देखें। और उसमें आप अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी मेजॉरिटी जो सैलरी है वो उसमें इन्वेस्ट कर दें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं वो करें, और कुछ ना कुछ टैक्स उसमें बचाएँ। उसकी वजह से आपको उसमें अपना सेविंग भी हो जाएगी, और प्लस ये इन्वेस्टमेंट तो होगी होगी। लेकिन उसमें इतने पैसे डालें कि उसको सस्टेन कर सकें और लॉन्ग टर्म पे कर सकें, और जो बोनस आ रहा है उसको भी थोड़ा बहुत आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे करना है आपको उसके अंदर। अच्छा, आपकी ईमेल से मुझे एक चीज़ और भी लग रही थी कि आपको एक और मसला ये है कि आप शायद लोगों में जब मिलते-जुलते हैं तो उसके अंदर पैसे खर्च करते होंगे। तो उस तरह से आप देखें, सोशलाइज़ करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, लेकिन सोशलाइज़ करने की वो कॉस्ट नहीं होनी चाहिए जो आपको आपको आपका बियर ना कर सके। सोशलाइज़ करने की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि आपकी एक्टिविटी चलती रहे, लेकिन वो आपकी जेब पे भारी ना हो। तो ये मेक श्योर करें कि सोशलाइज़ेशन आपकी जो है वो इस लाइन के ऊपर हो। और जहाँ तक आपने बात की बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि किसी भी तरह से आप इस चीज़ के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर एंटर करें। अगेन ये चीज़ें ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट हाई होती है, एक तरह का गैम्बल है। मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसको जाकर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है अभी तक। अभी आप देखें, इंडिया ने जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर से जो चीज़ें जो रिफ़ॉर्म लेकर आए हैं, वो
उसको देखा जाए तो वो कोई रिफ़ॉर्म एज़ सच रिफ़ॉर्म नहीं है। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इंडिया खुद अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया जब लॉन्च करेगा तो वो तो फिर डिसेंट्रलाइज़ तो नहीं हुई ना, वो तो उनकी अपनी करेंसी हुई। और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं 30% टैक्स लगेगा डिफरेंट ट्रेडिंग के ऊपर, जो क्रिप्टो करेंसी की जो जो आपकी प्रॉफ़िट है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब है ये सब कुछ एक नेटवर्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबली वो उन्हीं एक्सचेंजेस को अलाउ करेंगे इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, जो कि वो मेक श्योर करेंगे कि ये टैक्सेस पे कर सके बंदा। तो ये सारा जो जो बिटकॉइन या जो क्रिप्टो का ओवरऑल जो एसेंस था, वो यही था ना कि हम डिसेंट्रलाइज़ रहेंगे, गवर्नमेंट से हमें नहीं रहना उसके अंदर, उसकी उसकी सर्कल के अंदर नहीं रहना गवर्नमेंट के। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि अभी आगे जाकर जो डिसेंट्रलाइज़्ड क्रिप्टो है, उसका कितना स्कोप रहेगा। ऑफ़ कोर्स जो गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज़ होंगी, उसको आप यूज़ करेंगे जब पाकिस्तान के अंदर अगर आती है, तो पाकिस्तान में भी यूज़ होगी, जैसे इंडियंस यूज़ करेंगे इंडिया में रहते हुए। लेकिन उसका कोई एज़ सच वॉलेटिलिटी नहीं होगी ना, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का चार्म नहीं होगा उस तरह की करेंसी के अंदर। तो एनीवेज़ मैं नहीं कहता कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप डील करें, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप डेफ़िनिटली साइड हसल्स के ऊपर जाएँ। कोई ना कोई काम ऐसा, कोई ना कोई, मैं सबको बोलता हूँ कि अपनी स्किल्स को आपको खुद ही अनलीश करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप वही काम करें, नहीं आता तो जब तक कुछ भी कर कर सकते हैं वो करें एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। बाकी जो आपके पास, मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए हैं टैक्स बचाने के, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, आपके पास 4 बोनसेस आते हैं, तो आपकी अगर इतनी सैलरी है तो आप इसके अंदर सैलरी से वो काम करें और बोनस को अपना सेव एंड इन्वेस्ट करें। तो अभी बच्चे छोटे हैं, आपके स्कूल गोइंग अभी 2-3 साल है, जो छोटा बेटा है आपका 3-4 साल है इनफैक्ट उसको स्कूल जाने में, तो आपको टाइम है थोड़ा-सा आपके पास, जो आप उसके अंदर बिल्ट अप करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास अभी टाइम भी है और आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी है। इसको अवेल करना है, लेकिन अगर आप लूज़ करेंगे इस टाइम को, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर वली भाई, होप यू आर वेल। माय पर्सनल डिटेल्स आर ओनली वन ब्रदर, वाइफ, मदर, वन सिस्टर एंड 2 daughters. Having own house inherited from late father, plot of 5 Marla in Lahore, Naya Pakistan certificate of 45 lakhs, job in Saudi Arabia, salary is 8,000 Saudi Riyal, investment in Pakistan Stock Exchange 50,000 Pakistani rupees, cash in RD account 1.2 million. Need your brotherly advice for the above 1.5 1.2 million. He has not mentioned his age. ओके, इन्होंने अपनी एज नहीं बताई, राइट। उन्होंने अपनी एज नहीं बताई, बट ही हैज़ सम स्टेक्स इन पाकिस्तान एंड इज़ ऑलरेडी गॉट सम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो 45 लाख का है। सैलरी इनकी कम है, 8,000 सऊदी रियाल है, थोड़ी सी कम है सैलरी। आई डोंट नो इनकी इनकी जो वाइफ हैं और जो ओके सिर्फ वाइफ है, बच्चे नहीं हैं। एनीवेज पता नहीं इनके साथ रहती हैं कि नहीं रहती हैं। एनीवेज सो इन्होंने कहा है कि 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इनको करनी है, और उसमें क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बॉस, सबसे आप प्रॉपर्टी में तो जा नहीं सकते, सही है ना। और आरडीए में रखना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसमें तो आपने जो बताया ना, वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो आपने 45 लाख के लिए हैं, वो तो अलग है। लेकिन जो 12 लाख रुपए अलग से पड़े हुए हैं, ये इनका कुछ हो नहीं रहा है। तो इनको सबसे पहले तो आपको काम पे लगाना है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके ऑलरेडी आपके पास, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 50,000 रुपए की, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 50,000 के बाद आप 12 लाख रुपए पूरे-पूरे लगा दें, क्योंकि ये कभी भी बेहतर सिनेरियो नहीं होता है। इसमें मैं कहूँगा कि आप हल्के-हल्के करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, और पीएसएक्स के अंदर थोड़े बहुत पैसे डालना शुरू कर दें। मैं कहूँगा कि 50-50 हज़ार रुपए करके महीने के आप उसमें डालना शुरू कर दें, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर डालें। मैं कहूँगा डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर डालें, ताकि उनमें वॉलेटिलिटी कम होती है, आपको थोड़ी-सी चीज़ें भी समझ में आएँगी। उसको लर्न करें, थोड़ा-सा टाइम लगाएँ स्टॉक एक्सचेंज में, बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे ना डालें। जितने मिनिमम आप डाल सकते हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप 50,000 रुपए महीने के डालना शुरू कर दें। उसमें कोई ना कोई स्टॉक लेना शुरू कर दें। जो वॉलेटिलिटी जिन स्टॉक्स में कम है वो लें शुरू में, और जिनमें डिविडेंड मिलता है वो लें शुरू में। उसके बाद 6 महीने बाद जब आपको समझ में आ जाएँगी चीज़ें, तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरू में सबको यही एडवाइस करता हूँ कि ये लें। म्यूचुअल फंड में आप ना जाएँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको चीज़ों का पता होगा। तो मेरे ख़्याल से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप ये जो 12 लाख रुपए हैं, इनको भी आप नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट बना लेंगे। ये जो आपके टोटल 45 लाख रुपए और जो 12 लाख रुपए जमा हो जाएँगे, और उसके बाद जो आपको हर महीने इसका जो इन्वेस्टमेंट मिला, हर महीने या जितने भी पीरियोडिक टाइम बाद जो इन्वेस्टमेंट मिला करेगी, रिटर्न मिला करेगा इसका एनपीसी का,
उसको पूरा का पूरा आप डाल दिया करें अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जब तक आपको और कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई प्रॉपर्टी का सीन नहीं बनता है, जब तक आप यही काम करते रहें, उसके बाद होपफुली ये पैसे ग्रो करेंगे और उसके बाद आप फर्दर कुछ कर सकते हैं। मैं यही अगेन बोलूँगा कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर डालें, उनके भी पैसे आएँगे, उनको अगेन रीइन्वेस्ट कर दें स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हल्के-हल्के करके आप काम कर सकते हैं। एक और काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्योंकि जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आप सर्वा का अकाउंट भी खोल सकते हैं। सर्वा के अकाउंट के अंदर आप यूएस की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अम, वो आपके लिए कितना फ़ीज़िबल होगा, क्योंकि आपको सऊदीया से पैसे भिजवाने पड़ेंगे, वो तो इतना कॉस्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको हर महीने मैं कहूँगा कि आप डालें लेट्स से 500 रियाल, 1000 रियाल हर महीना डालें उसके अंदर, तो उसके लिए वो रिकरिंग होगी। अगेन वो चीज़ भी रिकरिंग होगी। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि 12 लाख रुपए आप डायरेक्ट किसी ऐसी जगह पर डाल दें जो स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ हो, जो आप पैसे हैं पूरे-पूरे डाल दें, ऐसा कभी भी ना करें। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस मेरे पास रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आते हैं। तो मैंने कहा कुछ पॉइंट्स मैं निकालता हूँ उन क्वेश्चंस के अंदर और आपको उस बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने पूछा था कि इसमें चेकबुक मिलती है तो क्यों मिलती है और इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? बाहर यूज़ कर सकते हैं? तो बाहर यूज़ नहीं कर सकते एज़ सच। इसको पाकिस्तान में ही चेकबुक यूज़ करेंगे। अगर आप पाकिस्तान जाकर पैसे निकलवाना चाहते हैं तो इस चेकबुक से निकाल सकते हैं। किसी को चेक देना तो चेक दे सकते हैं। तो चेकबुक इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा डेबिट ट्रांज़ैक्शन कैन हैपन फ्रॉम रिपैट्रिएशन। हाँ, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, आप दुनिया में कहीं भी वो एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसकी फ़ीस वगैरह आप देख लेंगे कि जो है ना कितनी फ़ीस उसमें से उसको निकालने से बन रही है। अदरवाइज़ वो यूज़ तो हो सकता है डेबिट कार्ड, जहाँ से भी मिला है आपको जो अपने बैंक का डेबिट कार्ड है, उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन एज़ आई सेड फ़ीस उसकी देखनी पड़ेगी। लोकल ट्रांज़ैक्शंस आर डन एज़ नॉर्मल बैंक, येस, उसके अंदर वैसी होती है। लोकल ट्रांज़ैक्शन जैसे नॉर्मल बैंक्स के अंदर होती है, वैसी होती है। सिर्फ़ उसमें इनवर्ड रेमिटेंस नहीं आ सकती है विदिन विदिन पाकिस्तान। तो बाकी सारी उसके अंदर वैसे ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, री-इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है ना आरडीए के अंदर, वो लोग पूछते हैं कि इसमें ऐसा मतलब मेरे ख़्याल से इसलिए है कि ख़ास तौर पे यूएसडी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है, बैंक्स की वेबसाइट पे वो प्रॉपर्ली नहीं डिस्प्ले होता। मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तानी रुपये है, अगर उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और जो री-इन्वेस्टमेंट है वो भी 1 लाख रुपए की है। लेकिन बस उसमें ये है कि 1 लाख 10,000, 1 लाख 20,000, 10,000 का मल्टीपल के ऊपर आप 1 लाख के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10,000 या 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें। आप लोगों को 1 लाख, 1 लाख 10,000, 1 लाख 20,000 रुपए इस तरह की इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ के साथ इन्वेस्ट करना है। तो वो ये हो गई उसकी बात पीकेआर की। कन्फ्यूजन होती है यूएसडी के अंदर। यूएसडी का मसला ये है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि $1000 की री-इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो $1000 अगेन वो री-इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेसिकली आपका इंक्रीमेंटल वैल्यू है। आपको हर सूरत में $5000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो पहली इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो दूसरी इन्वेस्टमेंट हो। वो $5000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके साथ आप $1000 मल्टीपल कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि $5500 इन्वेस्ट कर दें, आप 5000 की जगह 6000 कर सकते हैं, 7000 कर सकते हैं, 8000 कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑफ 1000 करनी है आफ्टर 5000। तो 5000 फिर अगले महीने 5000, लेट्स से 5000 की जगह 6000 कर दें, 10000 कर दें, जो भी करना है आपको 1000 के मल्टीपल में करनी है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि समवन फ्रॉम कोरिया ही वाज आस्किंग कि हम जो इमरजेंसी फंड है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर पार्क कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि ऐसा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि रिडेम्पशन मैंने खुद अभी तक नहीं कर पाई है। तो मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लगता है। हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन है, इसमें 1-1 हफ़्ता भी लग सकता है। तो इमरजेंसी फंड इतना टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें आरडीए के अंदर, वो सही नहीं होगा। दूसरी रीज़न ये है कि इमरजेंसी फंड क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है और हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए एकदम से। फ़र्ज़ करें आपको $2000 की ज़रूरत पड़ जाए और $2000 को मँगवाने में आपको तकरीबन कोई $50 या $60, $60, $70 लग जाएँ, क्योंकि रिडेम्पशन के अंदर जो मैंने देखा है ना, अगर आपको रिडेम्पशन करनी है तो वो एक साथ ही एक एक दफ़ा में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ उसके अंदर आपको जो कॉस्ट हिट करेगी वो ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट नोट करके रखें कि अगर आपको रिडेम्पशन करवानी है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पैसे पाकिस्तान से वापस मँगवाने हैं, तो कोई ना कोई उसमें फ़ीस इन्वॉल्व्ड होगी और वो क्या होगी, वो सरप्राइज़ भी हो सकता है। तो वो और ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट क्या होगी, जो उसके जो चार्जेज़ हैं वो क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखकर इन्वेस्टमेंट तो ख़ैर कोई मसला नहीं है क्योंकि वो बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन क्योंकि वो इमरजेंसी फ़ंड छोटी अमाउंट होगी तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ील होगा। तो वो मेरा नहीं उसमें ख़्याल कि उसमें कर सकें आप इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड के लिए जैसे मैं यूएई के अंदर हूँ, तो यूएई के अंदर मैं कह सकता हूँ कि नेशनल बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सेफ़ है
और इसके अंदर क्विक रिडेम्पशन भी होती है। तो अगर क्विक रिडेम्पशन करनी है तो थोड़े से चार्जेस लगते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम लेके आप रिडेम्पशन करवाएंगे तो उसमें 1 हफ्ता लग जाएगा और चेक मिल जाएगा आपको, तो उसमें कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। सो इस तरह की चीज़ मुझे नहीं पता साउथ कोरिया में क्या ऑप्शन होगा आपके पास, लेकिन आई वुड से कि मिनिमम आपके पास जो पैसे हो सकते हैं इमरजेंसी फंड में डालने के, वो आप किसी भी ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालें विद इन द कंट्री दैट यू आर लिविंग देयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल जो है वो बेसिकली एक साहब ने क्विकली मुझसे पूछा था, सलाम वली भाई, प्लीज़ शेयर न्यूज़लेटर ऑन बाइंग प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन इन दुबई। अब न्यूज़लेटर में तो मैंने न्यूज़लेटर लिखा था इस पे, लेकिन अभी मैं ऐसी बात करता हूँ। नाउ-अ-डेज़ डेवलपर आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन देयर इंस्टॉलमेंट विदाउट गोइंग टू बैंक एंड विदाउट पेइंग द मार्कअप। हाउ सिक्योर आर दोज़ ऑप्शंस एंड इज़न्ट इट द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई? तो अभी बात ये है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स दुबई में इस तरह हैं जिनके पास एक्सेस इन्वेंटरीज़ हैं, और वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप खुद ही उनसे इंस्टॉलमेंट पे ले लें प्रॉपर्टी रादर देन गोइंग टू द बैंक। उसमें आपके कुछ फ़ायदे भी हैं, उसमें कुछ नुकसान भी है। मैंने न्यूज़लेटर में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। वो इस तरह से कि अगर आप डेवलपर के पास डायरेक्टली जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई लेट्स से 3 लाख की प्रॉपर्टी है, वो कहेगा 3,20,000 दिरहम के अंदर आप 3 साल या 4 साल के ऊपर जो है ना मुझसे ले लें। और ये 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, 20,000 दिरहम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो आप समझ लें कि आपने जो बैंक को पैसे देने थे इंटरेस्ट, वो आप यहाँ पर, मैं इंटरेस्ट ही बोलूँगा, प्रॉफिट बोलें, इंटरेस्ट बोलें, जो भी बोलना है आपको बोल लें। लेकिन वो उस चीज़ के अंदर आप जो बैंक को दे रहे होंगे, वो आप इनको प्रॉपर्टी डेवलपर को एक्स्ट्रा पैसे दे दें इंस्टॉलमेंट की उसके ऊपर। इसमें फ़ायदा भी है, इसमें नुकसान भी है। फ़ायदा इसमें ये है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, और फ़र्ज़ करें कोई ऐसा बंदा हो जिसकी फॉर सम रीज़न क्रेडिट हिस्ट्री नहीं अच्छी हो, लेकिन उसके पास पैसे हों और वो चाह रहा हो कि वो प्रॉपर्टी ले ले इस तरह से। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर आपको पेपर वर्क में नहीं जाना पड़ेगा, बैंक के पेपर वर्क बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर आपको जल्दी काम हो जाएगा, आप डेवलपर के ऑफ़िस में जाएँगे और काम आपका ठक से हो जाएगा। ये काम आपके ये फ़ायदे हैं आपके। नुकसान इसमें ये है कि आप जब 2 नुकसान है इसमें। एक तो ये कि अगर आपने प्राइस स्टडी नहीं की होगी, तो हो सकता है डेवलपर आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो जो बैंक आपको चार्ज करेगा। तो ये आपको देखना होगा कि सिमिलर बिल्डिंग का या कैश प्राइस जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी कैश प्राइस में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू द जो उसकी इंस्टॉलमेंट प्राइस है। अगर वो एग्जॉर्बिडेंटली हाई है तो फिर आप उसके अंदर देख लें कि आप ज़्यादा बेहतर ये है कि बैंक के थ्रू आप उसको फाइनेंस करवा लें। दूसरा दूसरा जो उसमें नुकसान है वो ये कि नॉर्मली होता क्या है कि बैंक, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से वेट करते हैं। यानी कि वो आपका सारा देख लेते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, आपके कितने खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें करके वो आपकी इंस्टॉलमेंट की एक लिमिट बनाते हैं कि भाई आप लेट्स से 20,000 दिरहम सैलरी है, तो आप लेट्स से 5 या 6,000 दिरहम से ऊपर पे नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट या रेंट। तो अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो वो आपको लोन देंगे। लेकिन जब डेवलपर के पास जाएँगे तो एज़ सच उनकी कोई क्राइटेरिया नहीं होगा ये देखने के लिए कि आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें देखकर वो आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। लोन क्या मतलब, वो प्रॉपर्टी सैंक्शन कर देंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें आप खुद इतने प्रूडेंट नहीं हैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो आप लेट्स से 20,000 दिरहम की सैलरी के अंदर 10,000 दिरहम की प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, और अगर बैंक के थ्रू जाते तो वो आपको ये सारी चीज़ें देख लेता। तो डेवलपर के साथ जाने में आपको थोड़ा-सा एक तो खुद भी कॉशियस होना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आप गलत डिसीज़न ना ले रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उस न्यूज़लेटर के अंदर भी डिस्कस किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन ही इज़ अ डॉक्टर एक्चुअली। डियर वली, थैंक्स फॉर द ग्रेट कंटेंट दैट यू पोस्ट स्पेशली फॉर एक्सपैट पॉपुलेशन। आई टेक It takes time and effort to do so, and would like to appreciate your efforts. I'm working in Dubai as a GP with a current income of 30,000. I have saved around 200,000 and expect to save around 5 to 10,000 a month as well. I'm a sole breadwinner in the family, and take care of the parents as well, who will soon have to relocate here with me. My kids are small, 4 years and 1 year old. So in terms of education expenses, it's still minimal. I would like to ask your advice regarding investment avenues I should go explore with respect to retirement and kids education. I'm currently 36 years old with no liabilities. The mutual fund of Mizan that you talk about in your videos, are we able to apply and start with them from Dubai itself, or do they require opening a Pakistani bank account from there and getting it done physically? What other options do you have
to put money into from here in Dubai. Sorry to bother you, but I believe you are the right person to confide in regarding this. Okay, and I didn't see any mention of Naya Pakistan certificate. I don't know. If you have some beliefs which prevents you to go for the नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, तो आप फिर अलग बात है, लेकिन उसमें शरिया कंप्लाइंट भी है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप उसके अंदर आई हैव सेव्ड अराउंड 200 के ना, तो 200 के अंदर आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको पाकिस्तान जाने की, आप यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। आई वुड से कि आप जो है ना इस इन पैसों को स्प्लिट करें। मेजॉरिटी पोर्शन फ़िलहाल आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में डालें, और अगर आप वहाँ नहीं भेजना वैसे आप वहाँ ज़्यादा पैसे डालें, डॉलर के अंदर डाल दें, ताकि आपको एक जगह पर सेट हो जाएँ वो पैसे। उसके बाद उससे जो रिटर्न आ रहा है उसकी बाद में देख लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी पैसे आप उसमें डाल दें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में फ़ौरन। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है उसका अकाउंट खोलें, उसके अंदर हर महीने लेट से आप 50,000 रुपये डालते रहें, हर महीने डालें उसके अंदर। इसके अलावा स्टॉक, आई डोंट नो कि आपके पास कितना टाइम है, यू आर डॉक्टर और डॉक्टर्स के पास नॉर्मली टाइम कम होता है, तो वो मैं रिकमेंड करूँ ना करूँ मुझे नहीं पता कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, ना जाएँ तो बेहतर है। फ़िलहाल आप पहले म्यूचुअल फंड के अंदर जाएँ, और साथ में यूएई के अंदर एक प्लेटफॉर्म है सर्वा का। अब मैं इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ इस पे एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर मैं कोड भी दूंगा आपको, जो कि आप डाल के जो है ना आपको फ़ायदा भी होगा उसके अंदर। तो सर्वा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाएँ, सर्च कर लें अभी ऑनलाइन, आप मेरी एक वीडियो भी है उसके ऊपर। उस पे जाकर आपको यूएस के ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं, यूएस की स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। अब तो सर्वा ट्रेड भी आ गया है, तो उसके अंदर आप यूएस के स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। और उसमें भी अगेन मैं कहूँगा कि हल्के हल्के जाएं। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता कि आप जैसे आपके पास 2 लाख दिरहम है तो 2 लाख दिरहम एक साथ कहीं डाल दें, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपके पास मैंने एवेन्यूज़ बता दी हैं, आप पाकिस्तान के किसी 1-2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डाल दें, पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर पैसे डाल दें, और यहाँ पर यूएई के अंदर आप सर्वा के अंदर पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर क्रिप्टो और समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा गोल्ड अगर आपको लेना है या आपके पास ज्वेलरी वगैरह है तो फिर ज़रूरत नहीं है गोल्ड लेने की। आई डोंट नो अबाउट योर सिचुएशन इन पाकिस्तान के, वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बैक होम चाहिए नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इन पैसों को आप इसी तरह से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या वैसे भी नहीं, इतने पैसों में अच्छी प्रॉपर्टी कोई नहीं मिलेगी, तो बेहतर ये है कि आप इन इन एवेन्यूज़ पर डालें। लर्न भी करेंगे आप इन चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी होगा। हल्के-हल्के करके करेंगे तो कोई आपको ऐसा अगर कोई मेजर सेटबैक होना होता है तो वो इतना बड़ा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट सेफ़ है, आप उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। मेजॉरिटी आप उसी के अंदर भी डालें, ताकि आप जब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम आए तो उसके रिटर्न से आप फर्दर उसको फंड कर सकते हैं, कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये 2 वीडियोज़ आपके लिए मैंने लगाई हैं, इन दोनों को आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।